जॉब क्यों नहीं मिल रहा है? Supply and demand at the end of the day. Initial stages of coding है that is like totally taken care of आज की डेट में. तो there Is is it no like, can we be thankful to AI for this right now also? So hello sir, welcome to my podcast. Firstly, कैसे हो आप? I am good. Thank you for having me here. Finally, I am so happy today because I told मैं 2 महीने से at least आपको chase कर रही हूँ कि tech से podcast हो जाए because I've been getting so many queries lately on my पेज के टेक रिलेटेड चाहिए, आईटी सेक्टर रिलेटेड पॉडकास्ट चाहिए. इफ़ आई एम फ्रॉम अ नॉन टेक बैकग्राउंड तो टेक में कैसे स्टार्ट करूँ, कोडिंग नहीं आती तो शुरू कर सकती हूँ. एंड आई लाइक आई नीड द परफेक्ट पर्सन टू आंसर दीज क्वेश्चंस. एब्सोल्युटली. टेक इंडस्ट्री में ना सब बिजी हैं. दैट्स अ वेरी गुड स्टार्ट फॉर मी टू कि टेक इंडस्ट्री बिजी चल रही है एटलीस्ट अभी पूरे. अच्छा, you've been in this industry, if I'm not wrong, for the last 10 years I think. Yes. And you've stayed an employer I think all your life. Not all my life. So I was an employee also once. ठीक है. तो it was a very brief period. Like I was an employee for about a year. Right. I've been in tech for more than 10 years I believe now. And after that short period of time, I think it's been about 6 to 7 years now since I have had my own business. Since you are an employer, आप हायर कर रहे हो जब से. तो सर अगर हायरिंग की बात करें राइट नाउ टेक इंडस्ट्री में, व्हाट्स द हायरिंग सिनेरियो गोइंग लाइक? अभी तो आई थिंक इवन इन द लास्ट पीरियड जहाँ पे रिसेशन आया था, लॉट ऑफ पीपल वर लेड ऑफ. आई थिंक दिस टाइम the tech industry resumed hiring a lot faster than it was in previous recessions. So these companies, they came back and then they started hiring again in a very short period of time, probably 8-9 months के around ही. अभी भी there are like a lot of hirings ongoing. So the hirings are open for a lot of companies. Even today बहुत सारी companies अभी भी hire किए ही जा रही हैं, right? तो hiring is good, right? At the same time there are a lot of people of tech background जिनको job नहीं मिल रहा. That's also another reality. अगर इतनी मैसिवली हायरिंग चल रही है तो फिर जॉब क्यों नहीं मिल रहा है उतने लेवल पे जितना मिलना चाहिए? सप्लाई एंड डिमांड एट द एंड ऑफ द डे यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? तो इफ़ यू थिंक दैट देयर आर अ लॉट ऑफ इंजीनियर्स नाउ, ठीक है, एंड द कंपनीज हैव अ प्लेजर ऑफ चूजिंग फ्रॉम देम. I get 100 applications a day for my company, right? 100 applications we a day. We sift through 100 applications a day, ठीक है. But at the same time, we do not let go of anyone who's more than capable of doing the task. So we give an opportunity to a lot of people to come here, join us, and then get started even as a fresher. And it doesn't depend on, जैसे आपने पहले बोला ना यार कि what do you suggest कि यार अगर मैं हूँ ही नहीं tech background से, can I go into tech? So there are people like me, right, who offer to basically, if you are resilient, if you have that determination कि यार मुझे tech में ही कुछ करना है, then we offer you an opportunity जहाँ पे आप कर सकते हैं. तो I have had accountants in my team. I still have accountants in my team जिनको tech background में move करना था. Hell, I have some doctors even. तो कुछ yes dentist थे, कुछ different fields में थे जिन्होंने profession switch किया है. They wanted to be in coding and we gave them a chance to be in coding. They're doing fairly good even right now. So it means you can enter into tech even if you don't know coding on a basic level at least. You should know coding at a basic level to enter into tech, but that barrier is not it's not very hard. Okay. If you try to go to a YouTube video right now, search karo ki how to develop a website, right? Let's just start with the basic thing. कोई coding language, कोई C++ कुछ मत सीखो. Go for some basic website development in the start, ठीक है? If you really want to know how to make a website, you can still make it on WordPress. These are open source tools. और WordPress पे आप drag and drop करके एक website बना सकते हैं. That's how you can get started with creating a website. आज की डेट में तो ChatGPT भी एक website आपको बना कर दे देता है. AI based पूरी website बन जाएगी. तो आपके जो initial stages of coding है, that is like totally taken care of आज की डेट में. तो there is no. Like, can we be thankful to AI for this right now also? I think we can because initial level की जितनी भी coding है, AI can do it for you. बहुत सारे लोग but when it comes to an advanced level, AI can only help you. It can't do the code for you. तो वो हेल्प भी लिमिटेड हो जाती है एक और टाइम के आगे जाकर, ठीक है. तो AI वहाँ पे
कुछ लोग मुझे बोलते हैं यार कि यू नो AI विल रिप्लेस जॉब जॉब्स, खा जाएगा। ठीक है, जॉब ले जाएगा हमारी, तो हम डेवलपर्स की जॉब ले जाएगा, ये हो रहा है, मतलब पूरा का पूरा कोड ही निकाल देता है ChatGPT, राइट? इज इट ट्रू? इट इज़ ट्रू, ठीक है, इट इज़ ट्रू, पर जॉब खा लेगा? आई डोंट थिंक सो। अभी तो नहीं है, अभी इट इज़ नॉट इवॉल्व टू दैट लेवल जहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत ना पड़े। अभी भी देयर इज़ अ नीड ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन. The code is there, but it is not right, it is not correct, it is not 100% correct. You have to make it correct and you have to create your own project, you know, in such a way कि आप ChatGPT का इस्तेमाल कर लो, पर आप पूरा का पूरा प्रोजेक्ट डिपेंडेंट नहीं रह सकता ChatGPT पे. दैट इज द की हियर. और उस जब तक वो डिपेंडेंसी है तब तक एक अच्छे डेवलपर की तो ज़रूरत है ही है, राइट? और एक अच्छा डेवलपर वही है जो इवेंचुअली प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ हो, मतलब देयर माइंडसेट इज टुवर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्विंग. अच्छा इंजीनियर भी वही है. आई थिंक टेक में यही प्रॉब्लम सॉल्विंग इज लाइक द soft skill में it's like the most in demand skill that you need to be like inclined towards problem solving कि इसको solve करना है, and that is how you can survive here. True. तो आपने जैसे सर बोला कि you get 100 applicants in a day, right? So like just like an overview, कितने select हो जाते हैं out of 100? Like if a vague number even. About you know, if we have like 100, so we go for like the next rounds probably for about 10 to 20 people only. 10 to 20 means पहला 10% रेज्यूमे इज लाइक योर की. तो अगर आपका रेज्यूमे अच्छा नहीं है देन योर शॉर्ट लिस्टिंग इज गोइंग टू बी लाइक वेरी टफ. तो क्योंकि सबसे पहला व्यू ही आपका रेज्यूमे होता है. What's the first thing you look in a resume, like which is like a green flag कि ये तो पक्का ही selected, not selected but for the next round at least? अच्छा, फॉर द नेक्स्ट राउंड के लिए आई लुक एट लाइक, सबसे पहले तो द थिंग दैट आई लुक एट रेज्यूमे इज इट्स फॉर्मेट. इफ इट इज़ वेल फॉर्मेटेड, ठीक है, वेल स्ट्रक्चर्ड, एंड देर आर वेरी फ्यू मिस्टेक्स इन द स्ट्रक्चर इटसेल्फ, जो बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है. मतलब लोगों का स्ट्रक्चर नहीं सही होता, लोगों का फॉर्मेट नहीं सही होता, लोग फॉन्ट्स भी 2 या 3 डाल देते हैं रेज्यूमे में. थिंक अबाउट इट. आई गेट इट. वो ऐसे 2-3 तरह के फॉन्ट्स कलर्स फ्लैश हो रहे होते हैं. हाँ, तो इवन इफ द कलर्स आर आल्सो फ्लैशिंग ना, इट शुड बी लाइक अ मिनिमलिस्टिक डिजाइन ऑफ योर रेज्यूमे. देख के ऐसा ना लगे कि यार एस्थेटिक. पहली चीज़ ये है, मतलब दैट इज व्हाट यू नो डिस्क्राइब्स योर प्रोफेशनलिज्म. एंड एवरी कॉर्पोरेट कंपनी इवेंचुअली लुक्स फॉर प्रोफेशनल पीपल, राइट? तो अगर आपका रेज्यूमे एक अच्छे से स्ट्रक्चर्ड नहीं है देन इट कमेंट्स ऑन योर प्रोफेशनलिज्म, दैट यू आर नॉट प्रोफेशनलिज्म इवन टू टेक केयर ऑफ योर रेज्यूमे विच इज़ योर फर्स्ट इम्प्रेशन फॉर एन एम्प्लॉयर. तो वो तो पहले वहीं ख़त्म हो जाते हैं रेज्यूमे. बहुत सारे रेज्यूमेज सिर्फ इसी, अगर उन्होंने हो सकता है काम अच्छा किया हो, राइट, उसको प्रेजेंट अच्छे से नहीं किया, देन यू लूज इट, ठीक है. दूसरी चीज़ आती है काम. फिर देखा जाता है काम कि आपने काम क्या किया है, प्रोजेक्ट्स क्या किए हैं. जैसे वी हायर अ लॉट ऑफ फ्रेशर्स, तो फ्रेशर्स के लिए अब इफ़ यू थिंक अबाउट इट, तो वो कॉलेज में क्या करते हैं दैट मैटर्स, ठीक है. अब हर कंपनी का अपना अपना होता है, ठीक है. मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स और मोस्ट ऑफ द कंपनीज दे हैव लाइक अ बार कि ठीक है यार, इफ़ यू हैव अ CGPA of 7+, you are eligible to apply in our company, right? और if you have maybe a CGPA of 8+, then you are applicable, right? तो ऐसा एक बार होता है. Most and some other companies might not have that bar. Then what do they check? They check कि आपके अब प्रोजेक्ट्स क्या हैं जो आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट लिया है कॉलेज के अंदर बियॉन्ड योर एकेडमिक्स. बिकॉज दैट्स लाइक दिस इज़ द ट्रूथ. क्योंकि एकेडमिक्स में जो आप सीखते हैं, ठीक है, इट इज़ नॉट यूज्ड इन द सेम फैशन लाइक 100%, ठीक है. आप प्रॉब्ली 80% 70% ऑफ योर एकेडमिक्स यू कैन यूज़, ठीक है. बट दैट 30% का जो गैप होता है ना, द पीपल हु फुलफिल दैट गैप आर एक्चुअली वैल्यूएबल. I think the 30% is like the, what should I say, like in a layman, this is like the masala to your personality. Exactly. कि वो तो आपका एक the 70% which you are gaining from your traditional education, वो तो एक basic है. I think everyone, वो opportunity सबको मिली है. Right. But जो हम side ये hustles करते हैं projects से, that is dependent on us कि हम कितना उसमें कर सकते हैं, and then उसको present करना as you said. And these two would be the pointers that I think आप resume में सबसे पहले check करते हो. And if you had to tell me one thing which every fresher like should include in a resume, कि होना ही चाहिए ये तो पक्का.
यार जिस भी प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं जस्ट हैव समथिंग फॉर दैट प्रोफाइल. अगर आप मान लो आप टेक की प्रोफाइल के लिए मतलब यू आर अप्लाइंग फॉर अ कोडिंग प्रोफाइल राइट एंड यू हैव मेंशन दैट यू हैव डन डिजिटल मार्केटिंग. आई डोंट थिंक दैट दोज टू आर रेलिवेंट. ओके. ठीक है. तो अगर आपने किया हुआ है यू कैन मेंशन इट बट एटलीस्ट हैव कंटेक्स्ट ऑफ कोडिंग देयर एज वेल. वो ज़्यादा वैल्यूएबल है क्योंकि if I'm hiring specifically for coding profile I might not take you अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग पे काम किया हुआ है. लाइक फॉर एग्जाम्पल ठीक है मान लीजिए दैट यू हैव वर्कड ऑन जैसे आप यू टोल्ड मी राइट यू हैव वर्कड ऑन जर्नलिज्म राइट एंड मे बी इट इज़ लाइक यू वांट इफ़ यू वांट टू शिफ्ट योर करियर टू टेक तो आप कैसे करेंगी राइट. आई कैन गिव यू लाइक अ पूरा लेआउट कि आप क्या करें. ठीक है. अगर आपको अपना करियर टेक में शिफ्ट करना है करना मैं कैसे करूँगी सर. बहुत सिंपल होता है. ठीक है. गो टू डेमी. ठीक है. कोई भी एक चीज़ का आप कोर्स कर लें. ठीक है. आई वुड प्रेफर कि आप वेबसाइट डेवलपमेंट का कोर्स कर लें. ठीक है. देन गो टू फ्रीलांस वेबसाइट्स. मेक सम वेबसाइट्स फॉर क्लाइंट्स. ठीक है. फ्रीलांसिंग कर लें. ठीक है. जस्ट फॉर लर्निंग पर्पसेस. आई डोंट रिकमेंड फ्रीलांसिंग फॉर लाइक अर्निंग मनी. आई वुड ओनली रिकमेंड फ्रीलांसिंग फॉर लर्निंग्स. क्योंकि फ्रीलांसिंग से पैसा लाइक देयर आर लॉट ऑफ पीपल दैट अर्न इनफ थ्रू फ्रीलांसिंग बट इट इज eventually हाँ it eventually is not a secured way of moving forward with things. तो better way would be कि learn using freelancing, make some probably freelancing ऐसा नहीं है कि आपको Upwork जाके या Fiverr जाके ही करना है. You can make some projects for you yourself. जैसे आप अपना portfolio websites बना सकती हैं. Then you move forward और आप probably अपने you can just look at your surroundings and then see कि यार किसी को website की ज़रूरत है. Make them or make it for free initially. If you're confident you can charge. अच्छा. ठीक है. तो चार्ज भी कर लो. उसमें क्या है मतलब go ahead charge something for them and then build it. अगर आप चार्ज करती हैं then that will prove that you have a skin in the game. plus आपके एक fear चलेगा in your mind कि if you didn't deliver then it's going to be bad for your reputation. तो you do it and this process can take about a month. For one project. हाँ फॉर वन और टू डिपेंड्स ऑन यू आप कितने अच्छे हैं. आई हैव सीन पीपल फ्रॉम स्क्रैच वो HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीख के एक वेबसाइट डेवलपमेंट वो एक हफ्ते में कर लेते हैं. A week is like an average. A week is like an average. It's an average. Okay. It's an average time. कुछ लोगों को ज़्यादा लगता है कुछ लोगों को कम भी लगता है जो लोग शुरू करने वाले होते हैं. तो आई डोंट नो लाइक probably our processes are in such a way that we make sure that the person just goes to that point very very soon. But if you are like starting तो हो सकता है आपको 2 हफ्ते लग जाएं करने में. तो 2 हफ्ते या 3 हफ्ते if you have zero knowledge of coding तो 3 हफ्ते भी लग सकता है right. And then once you start building तो महीना I think a month would be like an average period कि आपके हाथ में 1 या 2 projects होंगे and those 2 projects then you can add to your resume. एंड द कोर्सेज यू मैंशन ये मतलब जेनविनली अगर आप नॉर्मली यूडेमी या कहीं पर भी जाके कोर्सेज करते हो आर दीज जेनविनली रिलायबल? क्या आप इनसे स्टार्ट करना इज़ लाइक द बेस्ट